Hello students, in today's lecture number 3 on system of particles and rotational motion for class 11, we shall have discussion on center of mass of a system of small n number of particles. In lecture 2, we discussed the center of mass of a two particle system. For two particle system, we derived the position vector of center of mass, which was RCM is equal to M1 R1 plus M2 R2 upon M1 plus M2, and this may also be rewritten as like this. If you consider that both the particles are having same mass, then the center of mass of two equal masses particles will be at midpoint of the line joining these two masses. And if you consider that the center of mass is at origin, then in that case the heavier mass particle will be close to the center of mass, or you can say the center of mass will be closer to the particle which is having more mass. So if m1 is greater than m2, it means this first particle is heavier, second particle is lighter, then center of mass will be close to the heavier particle. In this case the m2 is greater than m1, so you see the center of mass is shifted towards heavier particle. Always the center of mass will be towards the heavier particle. We also wrote the center of mass position vector in various forms, like 1 upon capital M, where capital M is the total mass of the system, and the system is having two particles, so this capital M, which is total mass, would be equal to M1 plus M2, and it can be written as summation I from 1 to 2 MIRI. Similarly, if you are calculating the center of mass in x direction, then you have, in place of RCM you will have XCM, and in place of R1 R2 you will have X1 X2, so it may be written as like this. And similarly for y component, for z component, we may write like this. And in the form of integration, the position vector of center of mass may be written as 1 upon m, and this summation can be replaced by integration, and m, in place of m you write dm, and this is ri means this r. So in this way you may write the position vector of center of mass in different forms. Now today we shall start our discussion on center of mass of a system of small n number of particles. Means हम एक ऐसा system consider करेंगे, we will consider a system which is having a small n number of particles, Suppose these are the axes, right? This one is x axis, this one is y axis, this one is z axis, and this is the origin. And this system is having a small n number of particles. Suppose this is the first particle m1, mass of first particle is m1, the mass of second particle is you see here it is m2, second particle, first particle, and similarly the third particle, mass of third particle is m3, and fourth particle, this is fourth particle, the mass of fourth particle is m4. Similarly, how many particles are there? Assume that there are a small n number of particles and the mass of nth particle is mn. Now what is the first step? First step is to locate the position of these particles. इन particles की position को हमें locate करना होगा using position vector. So for first particle you will draw this position vector, and it is represented by r1, vector r1, position vector for first particle, and this is the position vector for second particle, r2, right, vector r2, and this would be the position vector for third particle, and similarly this would be the position vector of fourth particle, r4 vector, and this would be the position of nth particle, rn, right? So these are the position vectors, right? Now
Next step is, you see, as we discussed in case of two system particles, that we considered one center of mass. Similarly, here also we consider one center of mass. For example, assume that this is the center of mass of the system of small n number of particles. This is the center of mass. मान लेते हैं कि ये center of mass है और ये center of mass का पोजीशन वेक्टर हो गया. इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया RCM. एग्जाम में आपको पेंसिल से बनाना है, यहाँ मैं समझाने के लिए आपको ये ग्रीन पेन का यूज कर रहा हूँ. ठीक है, RCM. इस RCM की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. और ये आप जानते हैं ये एक पूरा सिस्टम हो गया. ये एक पूरा क्या हो गया? सिस्टम हो गया. ये सिस्टम हो गया एक पूरा, जिसमें कितने पार्टिकल्स हैं? स्मॉल n पार्टिकल्स हैं. इस स्मॉल n पार्टिकल्स के सिस्टम के लिए हमें सेंटर ऑफ मास की लोकेशन फाइंड आउट करनी है. तो कैसे करें? देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे. यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था कि इन सभी पार्टिकल्स के बीच में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगेगा, जिनको इंटरनल फोर्सेज कहेंगे. पहला पार्टिकल दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, nth पार्टिकल पर. एक पार्टिकल के द्वारा इन सभी पार्टिकल पर, दूसरे पार्टिकल के द्वारा भी बाकी सभी पार्टिकल पर, सिमिलरली थर्ड के द्वारा भी बाकी सभी पार्टिकल पर, फोर्थ के द्वारा भी सभी पार्टिकल पर. यानी ये सभी पार्टिकल्स एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं. m1 m2 पर लगा रहा है तो m2 m1 पर लगाएगा. m1 m3 पर लगा रहा है तो m3 m1 पर लगाएगा. m2 m3 पर लगा रहा है तो m3 m2 पर लगाएगा. यानी यहाँ पर इंटरनल फोर्सेज लगेंगे. और ये R1 R2 पोजीशन वेक्टर हो गए. जो टोटल इंटरनल फोर्स होगा यहाँ पर, जो टोटल इंटरनल फोर्स होगा इन पार्टिकल्स के लिए, टोटल इंटरनल फोर्सेज क्या हो जाने चाहिए? टोटल इंटरनल फोर्सेज जैसे कि पहले का दूसरे के साथ, ठीक है, दूसरे का पहले के साथ, ठीक है, वैसे ही पहले का तीसरे के साथ, फिर तीसरे का पहले के साथ, ऐसे ही हम लिखते चले जाएं. कहाँ तक? F1n, ठीक है, F1n, F2n, ठीक है. जितने भी nth पार्टिकल्स हैं, इन सब के लिए जो इंटरनल फोर्सेज होंगे, सम ऑफ इंटरनल फोर्सेज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. सम ऑफ इंटरनल फोर्स, टोटल इंटरनल फोर्स क्या हो जाएगा? यहाँ पर जीरो हो जाएगा. क्यों जीरो हो जाएगा? कि एक दूसरे के ये फोर्स को कैंसिल कर देंगे. पहला पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर, दूसरा पहले पर, पहला तीसरे पर, तीसरा पार्टिकल पहले पर, पहला पार्टिकल चौथे पर, चौथा पार्टिकल पहले पर, पहला पार्टिकल nवें पार्टिकल पर, nवां पार्टिकल पहले पार्टिकल पर. इस तरीके से सभी पार्टिकल्स एक दूसरे पर इंटरनल फोर्स लगा रहे हैं, और जो कि इक्वल एंड अपोजिट होंगे. इस वजह से सम ऑफ टोटल इंटरनल फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. अब देखिए, मैं कंसीडर करता हूं कि फर्स्ट पार्टिकल पर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो F1 है. सेकेंड पार्टिकल पर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो F2 है. थर्ड पार्टिकल पर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो F3 है. फोर्थ पार्टिकल पर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो F4 है. और सिमिलरली मैं मान लेता हूं कि nth पार्टिकल पर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो Fn है. तो जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स होगा, टोटल एक्सटर्नल फोर्स जो होगा, टोटल एक्सटर्नल फोर्सेज कितना होगा? इसको यदि मैं F से रिप्रेजेंट करता हूँ टोटल एक्सटर्नल फोर्स को, तो ये सम होगा इंडिविजुअल पार्टिकल्स पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्सेज का सम. और ये कहाँ तक जाएगा? n तक जाएगा. ठीक है, ये टोटल एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी. अब देखिए, जब ये एक्सटर्नल फोर्सेज, जब F1 एक्सटर्नल फोर्स फर्स्ट पार्टिकल पर लगेगा, F2 एक्सटर्नल फोर्स सेकंड पर लगेगा, F3 थर्ड पर लगेगा, F4 फोर्थ पर लगेगा, और Fn nth पर लगेगा, तो इन सभी पार्टिकल्स के पास एक्सिलरेशन आ जाएगा एज पर न्यूटन सेकंड लॉ. तो सभी पार्टिकल्स की अपनी अपनी वेलोसिटी होगी. तो हम लिख सकते हैं on applying force on particles, all particles will have their own velocities. जैसे कि पार्टिकल 1 की बात करूं, फॉर पार्टिकल 1 की जो वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी? v1. और ये v1 किसके बराबर हो जाएगा? v1 फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r1 है, तो dr1
अपॉन dt हो जाएगा। पार्टिकल 2 की बात करूं, 2 के लिए हो जाएगा ये v2 वेक्टर इज इक्वल टू dr2 वेक्टर अपॉन dt। और फिर nth पार्टिकल के लिए इसी तरीके से यहाँ पूरा लिख देता हूँ फॉर पार्टिकल 2 और सिमिलरली फॉर पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल, nth पार्टिकल के लिए तो vn आ जाएगा। ठीक है, vn कितना आ जाएगा, इट वुड बी drn अपॉन dt। इस तरीके से वेलोसिटीज आ जाएंगी डिफरेंट पार्टिकल्स की। अब हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल फोर्स सिस्टम पर एक्ट करेगा, देयरफॉर टोटल फोर्स, सिंस कीजिए, सिंस टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन होल सिस्टम ऑफ स्मॉल एन पार्टिकल्स, जिसे आप एक्सटेंडेड बॉडी या रिजिड बॉडी भी कहते हैं, ये बात आप जानते हैं। तो टोटल फोर्स जो होगा F, ये किसके बराबर होगा, इट वुड बी द सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, टोटल एक्सटर्नल फोर्स प्लस टोटल इंटरनल फोर्स। एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेज का सम होगा, और ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया इंटरनल फोर्सेज का सम 0 है, और टोटल एक्सटर्नल फोर्स क्या है, F1 प्लस F2 प्लस अप टू कहाँ तक है, Fn तक है, ये टोटल एक्सटर्नल फोर्स होगा। तो जो टोटल फोर्स आया यहाँ पर, F का जो वैल्यू आया, F का वैल्यू क्या आ गया, F1 प्लस F2 प्लस अप टू प्लस Fn, ये टोटल एक्सटर्नल फोर्स हो गया। ये क्या हो गया, टोटल एक्सटर्नल फोर्स हो गया। अब यहाँ पर हम न्यूटन सेकंड लॉ की यूज करके, न्यूटन सेकंड लॉ का यूज करेंगे, यूजिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, टोटल फोर्स। तो ये F लिखा मैंने, इसको F लिखा, F1 की जगह क्या आ जाएगा, dP1 अपॉन dt आ जाएगा, प्लस F2 सेकेंड पार्टिकल के लिए रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ये हो जाएगा, P2 सेकेंड पार्टिकल का मोमेंटम है, P1 फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम था। ऐसे ही nth पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, nth पार्टिकल का मोमेंटम Pn, और इसमें रेट ऑफ चेंज क्या आएगा, dPn अपॉन dt आ जाएगा। अब P1 को क्या लिखा जा सकता है, फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम है तो m1v1 लिखा जाएगा, और P2 को क्या लिखा जाएगा, सेकेंड पार्टिकल का मोमेंटम है तो m2v2 लिखा जाएगा, प्लस और Pn को क्या लिखा जाएगा, ये nth पार्टिकल का मोमेंटम है तो mn लिखा जाएगा। ठीक है, ये सभी वेक्टर्स हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए मास तो चेंज हो नहीं रहा है, देयर इज नो चेंज इन मास, तो मास को हम बाहर ले सकते हैं d अपॉन dt, और ये v1 को और क्या लिखा जा सकता है, dr1 अपॉन dt लिखा जा सकता है ना। v1 की जगह मैं dr1 अपॉन dt लिख रहा हूँ, क्योंकि v1 इज द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, जिसको dr1 अपॉन dt हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। ये देखिए v1 निकाल लिया, v2 निकाल लिया, तो v1 v2 की वैल्यूज भी यहाँ रखते चले जाइए साथ के साथ, प्लस d अपॉन dt, m2 को बाहर ले लीजिए, और ये हो जाएगा dr2 अपॉन dt, प्लस अप टू प्लस mn को बाहर लीजिए, और ये हो जाएगा d अपॉन dt drn अपॉन dt, इस टाइप से आएगा। इसको आगे और सॉल्व करें तो लिखा जाएगा कैपिटल F इज इक्वल टू, क्या लिखा जाएगा, कैपिटल F इज इक्वल टू m1 d ऑफ dr1 अपॉन dt, तो हो जाएगा d2r1 अपॉन dt स्क्वायर, प्लस m2 बाहर है, d अपॉन dt ऑफ dr2 अपॉन dt क्या हो जाएगा, d2r2 अपॉन dt स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन हो गया ये, प्लस nth के लिए mn d2rn अपॉन dt स्क्वायर। कुछ भी रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो टोटल फोर्स है, इस टोटल फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू टोटल एक्जिलरेशन, एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ ये लिखा जा सकता है। ठीक है, एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ ये लिखा जा सकता है, और ये
टोटल एक्सिलरेशन जो है सेंटर ऑफ मास का ही एक्सिलरेशन होगा, क्योंकि जितना सेंटर ऑफ मास का एक्सिलरेशन होगा वही तो टोटल सिस्टम का एक्सिलरेशन होगा। ठीक है, तो ए को मैं ए सी एम लिख सकता हूँ, m1 d2r1 अपॉन डी टी स्क्वेयर, एक बार दोबारा से इसको एज इट इज लिख लेते हैं, d2r2 अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस अप टू प्लस mn d2rn अपॉन डी टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कैपिटल M तो आप जानते हो क्या लिख सकते हो, m1 प्लस m2 प्लस अप टू प्लस mn, ये लिखा जा सकता है कैपिटल M को। कैपिटल M इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, और टोटल मास ऑफ द सिस्टम किसके बराबर होगा, सिस्टम के अंदर जो n पार्टिकल्स हैं उनके इंडिविजुअल मासेज के सम के बराबर होगा। और ACM को क्या लिख सकते हैं, आप जानते हैं रफ में, यहाँ देखिए A बराबर होता है dV अपॉन डी टी और B बराबर होता है dr अपॉन डी टी, तो d2r अपॉन डी टी हो जाता है या नहीं। और यहाँ पर हम सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर हमने RCM लिया है, तो A बराबर d2r CM अपॉन डी टी स्क्वायर ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया मैंने। ठीक है, स्मॉल r की जगह कैपिटल R, क्योंकि मैंने सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर RCM कंसीडर किया हुआ है डायग्राम के अंदर, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, ये देखिए। ठीक है, चलिए आगे इधर राइट साइड में आप d2 अपॉन डी टी स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, और इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है m1r1 प्लस m2r2 प्लस अप टू प्लस mn इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, ये लिखा जा सकता है। अब देखिए ये d2 अपॉन डी टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ऐसे क्रॉस नहीं करना है क्योंकि ये ऑपरेटर हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप RCM की वैल्यू निकाल लीजिए। RCM आ जाएगा आपका m1r1 प्लस m2r2 प्लस mnrn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस अप टू प्लस mn। ये आ गया पोजीशन वेक्टर किसका, सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास, एक ऐसे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर हमने निकाला जिसमें स्मॉल n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, कल हमने जब बात की थी दो पार्टिकल के सिस्टम की, तो केवल इतना आ रहा था। ठीक है, तो ऐड होता चला जाएगा, जितने पार्टिकल होंगे उतना ऐड हो जाएगा, n पार्टिकल्स लिए तो n तक आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्मॉल n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको दूसरे तरीके से और लिखने का तरीका मैंने बताया था, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, RCM इज इक्वल टू समेशन I फ्रॉम 1 to n। ठीक है, और ये नीचे जो है स्मॉल m1 प्लस m2 प्लस अप टू mn, इसको कैपिटल M लिख दीजिए, ये टोटल मास है। और अंदर जो बचा ये MI I फ्रॉम 1 to n, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। अब यदि आप XCM लिखना चाहते हैं तो XCM के लिए हो जाएगा 1 अपॉन m, और ये समेशन I फ्रॉम 1 to n, और ये हो जाएगा MIXI। ठीक है, और यदि यहाँ से हम YCM लिखना चाहते हैं तो YCM हो जाएगा 1 अपॉन m समेशन I फ्रॉम 1 to n MIYI। ठीक है, और यदि आप ZCM लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन m समेशन I फ्रॉम 1 to n MIZI, ये हो जाएगा। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, और इसको आपको मैंने इस तरीके से भी लिखने का तरीका बताया था, इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखना है तो इसको इंटीग्रेशन dm इंटू r लिखेंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन की फॉर्म में XCM इज इक्वल टू 1 अपॉन m इंटीग्रेशन dx इंटू dm इंटू x, ये आ जाएगा। और इसको लिखेंगे तो YCM आ जाएगा 1 अपॉन m इंटीग्रेशन dm इंटू y आ जाएगा। और यहाँ आ जाएगा आपका ZCM क्या हो जाएगा 1 अपॉन m इंटीग्रेशन dm इंटू z हो जाएगा। इस तरीके से भी इनको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई स्मॉल n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास के पोजीशन की। ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पर ये ऑलरेडी बताया हुआ है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम मे और मे नॉट लाई इनसाइड द सिस्टम।
ये ऑलरेडी मैंने आपको लेक्चर में बताया था, लेक्चर 2 में बताया था। ये देखिए, ये लिखा भी था, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी और ए सिस्टम कैन बी इनसाइड और आउटसाइड इट, यानी सिस्टम के अंदर भी हो सकता है सेंटर ऑफ मास और सिस्टम के बाहर भी हो सकता है। अब देखिए, सेंटर ऑफ मास जिनका बाहर है उसके कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। आउटसाइड सेंटर ऑफ मास, आउटसाइड सेंटर ऑफ मास जिनका है उनके एग्जांपल्स देखिए। जैसे एग्जांपल्स में आप ले सकते हो, नंबर 1, कोई मान लीजिए रिंग सस्पेंड की हुई है आपने, ये मान लीजिए रूफ है, रिजिड सरफेस है, इस धागे से एक रिंग आपने ली, रिंग इस तरीके से चूड़ी जैसी रिंग होती है, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होता है, तो ये आउटसाइड ही तो है, ये आउटसाइड ही तो है भाई। बेंगल है, बेंगल है, बेंगल का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ होगा? बाहर होगा, बाहर होगा। बेंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? बाहर होगा, बेंगल के अंदर थोड़ी ना होगा, ठीक है। इसी तरीके से यदि होलो स्फीयर की बात करें, होलो स्फीयर, तो ये तो था रिंग के लिए था ये रिंग, जो कि एक आप कह सकते हो कि मासलेस स्ट्रिंग से जुड़ी हुई है। ये मासलेस स्ट्रिंग है। ये कैसी स्ट्रिंग है? मासलेस स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है। और ऐसे ही मासलेस स्ट्रिंग से एक स्फीयर को आप सस्पेंड कर दीजिए। ये स्फीयर होलो स्फीयर है। ये कैसा स्फीयर है? होलो स्फीयर, होलो स्फीयर, होलो स्फीयर है। तो इसका भी सेंटर ऑफ मास तो बाहर ही होगा, इसका भी सेंटर ऑफ मास तो बाहर ही होगा। जैसे देखिए, ये बेंगल है, इस बेंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? यहाँ सेंटर पर होगा, लेकिन जो सेंटर है वो इसके बाहर ही तो है, इसके बाहर होगा भाई। इस बेंगल के अंदर तो नहीं है, इसकी सरफेस पर तो कहीं है नहीं, यहाँ सेंटर ऑफ मास है, इसका मतलब आउटसाइड द बेंगल है। तो रिंग भी तो ऐसा ही होता है। और होलो स्फीयर जैसे कि बॉल होती है, जो कि सॉलिड बॉल नहीं होती है, टेनिस बॉल वगैरह आप देखते हो, उसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। वैसे ही कोई सेमी सर्कुलर हुप है, जैसे कि सेमी सर्कुलर हुप आप ले लीजिए, मान लीजिए इस टाइप का होता है। ये स्ट्रिंग से आपने क्या किया, एक सेमी सर्कुलर हुप, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है सेमी सर्कुलर हुप, ठीक है। तो इसका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? बाहर होगा इसके। सेमी सर्कुलर हुप, सेमी सर्कुलर हुप, ठीक है, इस टाइप का हो सकता है, या फिर इस टाइप का भी सेमी सर्कुलर हुप हो सकता है, किसी भी स्ट्रक्चर का हो सकता है। इस धागे से लटका दीजिए मासलेस स्ट्रिंग से, तो इसका सेमी सर्कुलर जो हुप है, ये भी सेमी सर्कुलर हुप है और ये भी सेमी सर्कुलर हुप है। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास जो है बाहर है। तो इन चारों केसेज में, इन चारों एग्जाम्पल्स में जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ है? बाहर है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास मे बी आउटसाइड द सिस्टम और ए रिजिड बॉडी। अब देखिए, जो होलो स्फीयर है, यहाँ पर जो मैंने होलो स्फीयर का एग्जांपल दिया, इस होलो स्फीयर में मैं क्या करता हूँ? अभी देखिए, इस होलो स्फीयर में मैंने यहाँ पर ये कुछ भी नहीं भरा हुआ है, सेंटर ऑफ मास इसका सेंटर पर है। यदि होलो स्फीयर में मैं इस होलो स्फीयर में आधा पानी भर देता हूँ, पानी से भर देता हूँ, और फिर स्ट्रिंग से लटका देता हूँ, या नहीं लटकाते हैं, ठीक है, ये लीजिए, आधा मैंने इसको पानी से भर दिया। किससे भर दिया? पानी से भर दिया, ठीक है। ये है होलो स्फीयर। होलो स्फीयर में आपने क्या भर दिया? वाटर, वाटर भर दिया, आधा वाटर से भर दिया, ये पानी से भर दिया। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास जो पहले यहाँ पर था, पहले ये मान लीजिए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन इसको रिप्रेजेंट करता है ओ पॉइंट से, ये पॉइंट ओ पर था। तो अब जब पानी भर दिया आपने, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है बेटा, इस तरफ कहीं शिफ्ट हो जाएगा, ये इस जगह आ जाएगा सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गया? जिस तरफ पानी भरा हुआ है उस तरफ शिफ्ट हो गया। ध्यान रखिए, सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ था, अब यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से आप पानी भरिए चाहे मिट्टी भरिए, कुछ भी आप जब भर देंगे तो सेंटर ऑफ मास हमेशा किस तरफ जाएगा? जिस तरफ ज्यादा वजन होगा, ठीक है, ज्यादा मास होगा। अब जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स के सेंटर ऑफ मास के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। कुछ ऑब्जेक्ट्स के सेंटर ऑफ मास आप देखिए, जैसे कि एक यूनिफॉर्म थिन रॉड आपको दिखाई दे रही है। यूनिफॉर्म थिन रॉड है ये, यूनिफॉर्म थिन रॉड। इस यूनिफॉर्म थिन रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा
वो मिड पॉइंट पर होगा। ये देखिए मिड पॉइंट पर है, एक जैसी थिन रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पर है। सर्कुलर रिंग का जो सर्कुलर रिंग है ये, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पर होगा। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके सेंटर पर होगा। जैसे कि यूनिफॉर्म थिन रॉड का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पर था, वैसे ही सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पर। सर्कुलर डिस्क देखिए, ये डिस्क होती है इस टाइप से, थोड़ी मोटी होती है। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास भी इसके सेंटर पर होगा। क्यूबिकल कोई स्ट्रक्चर है, क्यूबिकल बॉक्स है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है, जो इसके डायगोनल्स जहां इंटरसेक्ट करेंगे ना, डायगोनल्स यहीं इंटरसेक्ट करेंगे इसके, तो ये सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। सिलेंडर की मैं बात करूं तो सिलेंडर का जो सेंटर ऑफ मास है, देखिए इस एक्सिस पर है, इसके सेंटर पर है, सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, इस एक्सिस के सेंटर पर इसका सेंटर ऑफ मास है। और वैसे ही यदि मैं सॉलिड स्फीयर की बात करता हूं तो सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पर होगा। वैसे ही कोई ट्राइंगुलर लेमिना है तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसके मीडियन का जो इंटरसेक्शन है, ये मीडियंस हैं, ये मीडियंस आपने ड्रॉ किए और इनका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा। लेकिन सॉलिड कॉन की बात करें, सॉलिड कॉन के केस में देखिए, सॉलिड कॉन इस टाइप का होता है कॉन। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास देखिए यहाँ पर होगा, अप्रोक्सीमेटली 3/4 ऑफ द हाइट ऑफ द कॉन। ठीक है, 3/4 यहाँ पर होगा, हाइट का 3/4, एच का 3/4, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास होगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सेंटर ऑफ मास जो है आइडिया होना चाहिए कि किस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता है। चलिए, इसके बाद में हम बात करेंगे, इसके बाद में हम बात करते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की। किसकी बात करेंगे, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कैसे मूव करता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इस पर जाने के लिए, इसको डिस्कस करने के लिए वापस हम उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे जो हमने स्मॉल n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए कंसीडर किया था। हेडिंग डाल लेते हैं, हेडिंग है हमारा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। CM लिख दो शॉर्ट में या पूरा लिख दो, कोई एक ही बात है। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए हम एक सिस्टम कंसीडर करते हैं। देखिए अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि फॉर ए सिस्टम of small n particles, for a system of small n number of particles, ठीक है, of masses m1 पहले पार्टिकल का, दूसरे पार्टिकल का m2, ऐसे ही nth पार्टिकल का मास mn मान लेते हैं। तो ये मासेज हैं। एंड ऑल्सो अज्यूम दैट लेट r1 r2, राइट, समझ गए होंगे आप क्या लिख रहा हूं मैं, r1 r2 rn, ये क्या है, बी द पोजीशन vectors of n particles रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या है, r1 है, सेकंड का क्या है, r2 है, nth का क्या है, rn है। तो इस केस में जो सेंटर ऑफ मास होगा, देयरफॉर सेंटर ऑफ मास, इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा, सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर, सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है, ऑफ स्मॉल n पार्टिकल्स, क्या लिखा जाएगा, RCM, इट वुड बी इक्वल टू व्हाट, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस अप टू mn rn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस अप टू प्लस mn, ये लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं
देखिए इसको और थोड़ा सा रेक्टिफाई कर सकता हूँ, रीअरेंज कर सकते हैं दोबारा से। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है M1R1 प्लस M2R2 प्लस MnRn डिवाइडेड बाय, इसको क्या लिखा जाएगा नीचे वाले को, कैपिटल M, सम ऑफ मासेज ऑफ स्मॉल n पार्टिकल्स। ये क्या होगा, टोटल मास ऑफ द सिस्टम होगा। सिस्टम का टोटल मास क्या होगा, उसके अंदर जितने पार्टिकल्स हैं उनके मास के सम के बराबर होगा, कैपिटल M लिख दिया। अब यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इसको इस तरीके से लिख दिया गया। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स कर रहे हैं, कुछ हम यहाँ पर फिजिक्स का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, मैथमेटिक्स कर रहे हैं। एक हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे और उससे फिर इसके मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात कर लेंगे। अब इसको मैं क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट कर देता हूँ, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। अब इतना दिन हो गया, इतने चैप्टर्स आपने स्टडी कर लिए फिजिक्स में, डिफरेंशिएशन अब आप जान गए होंगे। देखिए m मास का तो होगा नहीं क्योंकि इसमें तो कोई चेंज आता ही नहीं है टाइम के रेस्पेक्ट में। पोजीशन वेक्टर में चेंज आ सकता है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो RCM का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, DRCM अपॉन dt इज इक्वल टू M1 का नहीं होगा, R1 का होगा, dR1 अपॉन dt। ठीक है, M2 का नहीं होगा, R2 का होगा, dR2 अपॉन dt प्लस अप टू प्लस Mn का नहीं होगा, Rn का होगा, dRn अपॉन dt। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा VCM, ये VCM हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा M1 V1 प्लस ये हो जाएगा M2 V2 प्लस अप टू ये हो गया Mn Vn हो गया। क्या हो गया, Mn Vn हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये VCM क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हुई, सेंटर ऑफ मास की क्या हुई, वेलोसिटी हुई। ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं इसको, अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में दोबारा से कीजिए, m का होगा नहीं, VCM का होगा, तो dVCM अपॉन dt ये आएगा, M1 dV1 अपॉन dt ये आएगा, प्लस M2 dV2 अपॉन dt ये आ जाएगा, प्लस अप टू प्लस Mn dVn अपॉन dt आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा ACM आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ACM। ये एक्सिलरेशन हो गया ना, dB अपॉन dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सिलरेशन को, और ये CM है, ये CM है, सेंटर ऑफ मास का एक्सिलरेशन हो जाएगा। ये वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी थी, तो ये सेंटर ऑफ मास का एक्सिलरेशन हो जाएगा, और ये एक्सिलरेशन आ जाएगा फर्स्ट पार्टिकल का dV1 अपॉन dt, सेकेंड पार्टिकल का एक्सिलरेशन क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा, dV2 अपॉन dt। सिमिलरली nth पार्टिकल का जो एक्सिलरेशन आएगा वो An आ जाएगा, nth पार्टिकल का एक्सिलरेशन क्या आ जाएगा, An आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, सिंस F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन होता है, कौन कहता है, एज पर न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऐसा कहता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लेफ्ट साइड को, देयरफॉर लेफ्ट साइड को मैंने एज इट इज लिखा। ठीक है, MACM इज इक्वल टू M1A1 क्या लिखूंगा मैं, F1 लिख दूंगा। ठीक है, M2A2 क्या लिखूंगा, F2 लिख दूंगा, प्लस MnAn को क्या लिख दूंगा, Fn लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, Fn लिख देता हूँ। ठीक है, और ये जो भी टर्म है, ये जो भी टर्म आ रही है ये राइट साइड में, ये राइट साइड में जो F1 प्लस F2 प्लस अप टू Fn है, ये सब क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेज हैं। टोटल एक्सटर्नल फोर्स हो गया, EXT मतलब एक्सटर्नल और F का मतलब फोर्स, ये टोटल एक्सटर्नल फोर्स हो गया। तो MACM किसके बराबर आ गया, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर आ गया। यानी सेंटर ऑफ मास का जो मोशन होगा, यहां से देखिए
आप सेंटर ऑफ मास का जो मोशन होगा वो वही होगा, देखिए एक्सिलरेशन वही होगा जो एक्सिलरेशन एक्सटर्नल फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। यानी the center of mass of a system of particles moves as if whole of the mass of the system were concentrated at the position of the center of mass and all the external forces were applied at the center of mass. तो यहाँ से हम कह सकते हैं that is we can say that, क्या कहा जा सकता है, we can say that the center of mass, the center of mass of a system of particles, of a system of particles, of a system of particles moves, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का जो सेंटर ऑफ मास है वो कैसे मूव करता है, जैसे कि एज इफ, जैसे कि पूरा की पूरा मास, होल ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम, होल ऑफ मास of system, whole of mass of system were concentrated, were concentrated, were concentrated at, were concentrated at the position, at the position, at the position of center of mass and all external forces and all external forces were applied at the center of mass. मतलब क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास वैसे ही मूव करता है, सेंटर ऑफ मास वैसे ही मूव करता है जैसे कि इस तरीके से मूव करता है सेंटर ऑफ मास कि जो सिस्टम है उसका पूरा की पूरा मास उस जगह सेंटर्ड माना जा सकता है, उस पोजीशन पर, सेंटर ऑफ मास की उस पोजीशन पर सेंटर्ड माना जा सकता है जहां पर एक्सटर्नल फोर्सेज अप्लाई किए गए हैं। तो एक्सटर्नल फोर्सेज के द्वारा जो एक्सिलरेशन प्रोड्यूस होता है वही एक्सिलरेशन किसका होगा, सेंटर ऑफ मास का। तो एज ए होल जो एक्सिलरेशन होगा किसका, बॉडी का, ठीक है, एज ए होल जो एक्सिलरेशन होगा, देखिए जो भी आपने ये स्मॉल एन पार्टिकल्स का ये सिस्टम कंसीडर किया, रिजिड बॉडी कंसीडर की, इसका एज ए होल जो एक्सिलरेशन होगा, इस पूरे के पूरी बॉडी का जो एक्सिलरेशन होगा वही एक्सिलरेशन इस सेंटर ऑफ मास का होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेंटर ऑफ मास की मोशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम आगे इसमें बात करेंगे कि जो लीनियर मोमेंटम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का वो कंजर्व रहता है। क्या रहता है, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यानी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसकी हम बात करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। हेडिंग है लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम मतलब P ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जिसको हम दूसरे रूप में यूँ भी कह सकते हैं, मतलब मैं बात कर रहा हूँ कंजर्वेशन की। किसके कंजर्वेशन की बात कर रहा हूँ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये बात की जा रही है। यानी सेंटर जो सिस्टम है पार्टिकल्स का, उसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, ठीक है। अब देखिए जो स्मॉल n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का सिस्टम लिया था, ठीक है, यदि हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ स्मॉल n नंबर ऑफ particles of masses m1, m2,
mn and position vectors r1 r2 rn रेस्पेक्टिवली। एक हमने ऐसा सिस्टम कंसीडर किया है जिसमें स्मॉल n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं एंड उनके मासेज m1 m2 mn हैं और उनके पोजीशन वेक्टर r1 r2 rn हैं एंड ऑल्सो अज्यूम दैट क्या अज्यूम कर लें, ऑल्सो अज्यूम दैट these particles are moving with velocities v1 v2 vn। ये वेलोसिटीज के साथ v1 दिखाई दे रहा होगा आपको, v1 v2 अप टू vn रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इन वेलोसिटीज के साथ ये मूव कर रहे हैं। ठीक है, वेलोसिटीज हमें पता है, पोजीशन वेक्टर्स पता है, मास पता है, तो जो मोमेंटम होगा तो देयरफॉर टोटल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होगा p, ये किसके बराबर होगा, p बराबर होगा फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम प्लस सेकेंड पार्टिकल का मोमेंटम प्लस nth पार्टिकल का मोमेंटम, यही होगा। फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम हो गया m1 v1, सेकेंड पार्टिकल का मोमेंटम हो गया m2 v2, ऐसे ही nth पार्टिकल का मोमेंटम हो गया mn vn। ठीक है, तो टोटल मोमेंटम ये आ गया। अब यहाँ से आप देखिए, ये हो गया आपका p1, ये हो गया p2, ये हो गया आपका pn, है या नहीं। अब आप यहाँ से यदि हम देखें तो इसको आप ऐसा कह सकते हैं कि जो टोटल मोमेंटम है, देखिए सिस्टम का टोटल मास कैपिटल M होगा, बिल्कुल होगा, और सेंटर ऑफ मास की अपनी कुछ वेलोसिटी होगी, सेंटर ऑफ मास की अपनी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। तो देखिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वेक्टर p इज इक्वल टू टोटल मास इनटू सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो टोटल वेलोसिटी होगा सिस्टम का, है यानी सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वही तो वेलोसिटी होगी, टोटल वेलोसिटी सिस्टम की। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएट करके dp अपॉन dt लिखता हूँ। ठीक है, dp अपॉन dt लिखा यहाँ से, तो मास का तो होगा नहीं और ये लिखा जाएगा dvcm अपॉन dt। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ से ये dvcm अपॉन dt ये हो जाएगा acm, क्या हो जाएगा, acm, है या नहीं, acm हो जाएगा। तो इस और ये क्या हो गया, dp अपॉन dt ये हो गया f एक्सटर्नल, ये क्या हो गया, f एक्सटर्नल। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये भी प्रूव किया था कि ये f एक्सटर्नल के बराबर होता है। तो f एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या आ गया, ये मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग वैल्यू आ गई। लेकिन यदि मैं यहाँ पर ये मानता हूँ इफ फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम की यदि हम बात करें, आइसोलेटेड सिस्टम में आप जानते हो, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम, ए सिस्टम ऑन विच no external force is acting, ठीक है, जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम कर रहा है, उस आइसोलेटेड सिस्टम के लिए एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू क्या आ गया, 0 हो जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। और जब ये 0 होगा तो डेफिनेटली क्या आ जाएगा, डेफिनेटली एफ एक्सटर्नल 0 है तो dp अपॉन dt ये 0 हो जाएगा। और यहाँ से ऐसा जब हम कहते हैं तो p की वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी, p की वैल्यू क्या आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी। और p की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टोटल मास इनटू वेलोसिटी, vcm सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी, ये कांस्टेंट आएगा या नहीं। और मास कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट में चला जाएगा,
यानी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। यानी जब कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम पर नहीं लगता है तो उसके सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ से लिख लेते हैं हेंस या सो वी कैन से दैट द मोमेंटम of the center of mass of the system, we can say that the momentum of center of mass of an isolated system is constant। ठीक है, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, दिस इज, जब मोमेंटम कांस्टेंट रहता है तो इसे ही हम क्या कहते हैं, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसे ही हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। और ये VCM इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ मास जो है, आप यहाँ से ये भी कह सकते हो, इस इक्वेशन से ये भी कह सकते हो, सेंटर ऑफ मास मूव्स, ये जो इक्वेशन है वो क्या बता रही है हमें, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है, ये बात यहाँ से प्रूव होती है। तो इसे को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, चलिए इसके बाद में अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। सेंटर ऑफ मास का जो एग्जाम्पल है, देखिए कुछ एग्जाम्पल्स मैं सीधे बात कर रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल्स बता देता हूँ। जैसे पहला एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा होगा, एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। एग्जाम्पल्स की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए ये है सन और ये अर्थ है और ये मून है। अर्थ के चारों तरफ मून चक्कर लगा रहा है और अर्थ ऐसे चक्कर लगा रही है, और ये जो पाथ है ये सेंटर ऑफ मास का पाथ है। ठीक है, अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है और अर्थ के चारों तरफ मून घूमता है, ये बात आप जानते हैं। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलेप्टिकल पाथ। अर्थ सन के चारों तरफ इलेप्टिकल पाथ में मूव करती है। वेयर एज द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट। जबकि मून अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है। बोथ द अर्थ एंड द मून मूव्स इन सर्किल। लेकिन ये जो अर्थ और मून है दोनों सर्किल में मूव करते हैं अबाउट ए कॉमन सेंटर ऑफ मास, इस सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। ठीक है, द इंटरनल फोर्स विच एक्ट ऑन द अर्थ मून सिस्टम। अर्थ और मून सिस्टम, ये सिस्टम हो गया ना, दो पार्टिकल जैसा हो गया। ठीक है, तो इस पर जो इंटरनल फोर्स होगा वो कौन सा होगा, अर्थ और मून के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, द अर्थ एंड द मून आर ऑलवेज ऑन अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के हमेशा अपोजिट साइड होते हैं, कौन, अर्थ और मून। और अर्थ का मास जो है मून से ज्यादा है, इसलिए सेंटर ऑफ मास अर्थ के ज्यादा क्लोज होगा। समझ में आ रही है बात। अर्थ इज हेवियर देन द मून, सो द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज वेरी क्लोज टू द अर्थ। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इट इज दिस सेंटर ऑफ मास विच रिवॉल्व अराउंड द सन। तो फिर सन के चारों तरफ कौन घूम रहा है, सेंटर ऑफ मास घूम रहा है। ठीक है, वैसे ही ये एक एग्जाम्पल देखिए। इस एग्जाम्पल में ये कोई न्यूक्लियाई है, जेड एक्स है, ए मास नंबर है, जेड एटॉमिक नंबर है। जब इस पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं तो ये अपने डॉटर न्यूक्लियाई में टूटता है और ये कुछ अल्फा पार्टिकल इससे निकल गए। जब इससे अल्फा पार्टिकल निकल गए 2He4, तो जेड में 2 से चेंज आ गया और ए में 4 से चेंज आ गया। ये इस तरफ गया और अल्फा पार्टिकल इस तरफ गया, लेकिन इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो सीधे मूव करेगा। देखिए सेंटर ऑफ मास, इंटरनल फोर्सेज के कारण सेंटर ऑफ मास डिस्टर्ब नहीं हो रहा है।
देखिए इंटरनल फोर्सेज के कारण सेंटर ऑफ मास डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो ये इसका रेडियोएक्टिव डीके हुआ, ये जो रेडियोएक्टिव डीके हुआ, रेडियोएक्टिव डीके का मतलब ये जो न्यूक्लियस टूटा, ठीक है, इस न्यूक्लियस में और इसमें, तो ये जो डीके हो रहा है ये किसके कारण हुआ, ये इंटरनल फोर्सेज की वजह से हुआ। किसकी वजह से हुआ, इंटरनल फोर्सेज की वजह से हुआ, ठीक है। तो इंटरनल फोर्सेज के कारण देखो, लेकिन सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं आ रहा। इंटरनल फोर्सेज के कारण कोई सेंटर ऑफ मास में चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। इंटरनल फोर्सेज के कारण सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। आगे और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे दीपावली पर आपने पटाखे फोड़े होंगे, दीपावली पर आपने पटाखे फोड़े होंगे, तो इसमें देखिए एक्सप्लोजन ऑफ प्रोजेक्टाइल और क्रेकर, एक्सप्लोजन ऑफ प्रोजेक्टाइल और क्रेकर इन मिड एयर, एक्सप्लोजन ऑफ प्रोजेक्टाइल और फायर क्रेकर, दीपावली पर जब छोड़ते हो फायर क्रेकर, तो यहाँ पर मान लीजिए कोई पटाखा था, इसको यहाँ पर आपने इग्नाइट किया और ऊपर गया और यहाँ ब्लास्ट हुआ और डिफरेंट पार्ट्स जो है अलग अलग डायरेक्शन में इसके टूट गए, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास है वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है। सेंटर ऑफ मास डिस्टर्ब नहीं हुआ, क्योंकि जो एक्सप्लोजन यहाँ पर हुआ पटाखे का, क्रैकर का जो एक्सप्लोजन हुआ वो इंटरनल फोर्सेज के कारण हुआ, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, लेट अस कंसीडर ए प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल कौन है, क्रैकर है, प्रोजेक्टाइल कौन है यहाँ, क्रैकर है, विच एक्सप्लोड्स इन एयर, जो कहां पर एक्सप्लोड हुआ, एयर में। बिफोर एक्सप्लोजन द प्रोजेक्टाइल मूव्स अलोंग ए पैराबोलिक पाथ, ये पाथ फॉलो किया उसने एक्सप्लोजन से पहले, ठीक है, मूव्स अलोंग ए पैराबोलिक पाथ। आफ्टर एक्सप्लोजन ईच फ्रेगमेंट, जो प्रत्येक छोटा छोटा टुकड़ा इसका हुआ आफ्टर एक्सप्लोजन, वो अपने अपने पैराबोलिक पाथ में मूव करता है। जो इसके छोटे छोटे टुकड़े हुए वो अपने अपने पैराबोलिक पाथ में मूव करता है, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास होगा इस पटाखे का वो तो उसी तरीके से मूव करता रहेगा। इट विल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम पैराबोलिक पाथ, इट विल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम पैराबोलिक पाथ। तो इसका मतलब क्या है, द प्रोजेक्टाइल फॉलो ए पैराबोलिक पाथ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, एक्सप्लोजन ऑफ द प्रोजेक्टाइल अकर्स ओनली ड्यू टू इंटरनल फोर्सेज, इंटरनल फोर्सेज के कारण यहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर नहीं लगा। दीज इंटरनल फोर्सेज कैन नॉट चेंज द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ये जो इंटरनल फोर्सेज है हमने थोड़ी देर पहले देखा, जो मोमेंटम है वो एक्सटर्नल फोर्सेज पर डिपेंड करता है, ना कि इंटरनल फोर्सेज पर। तो इंटरनल फोर्सेज के कारण जब ये एक्सप्लोजन हुआ तो यहाँ पर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा। किसके मोमेंटम में, इंडिविजुअल जो फ्रेगमेंट्स हैं उनके मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा। तो जो सेंटर ऑफ मास है वो अनडिस्टर्ब्ड रहेगा, अनअफेक्टेड रहेगा, कोई उसमें डेविएशन नहीं आएगा, जैसे वो मूव कर रहा था वैसे ही मूव करता रहेगा। तो देखिए पहले एक्सप्लोजन से पहले सेंटर ऑफ मास ऐसे जा रहा था, एक्सप्लोजन के बाद भी ऐसे ही जा रहा है। तो सेंटर ऑफ मास में, मेरा कहने का मतलब यह है कि सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं आता है, किसकी वजह से, इंटरनल फोर्सेज की वजह से सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। तो ये डिस्कशन हुआ सेंटर ऑफ मास फॉर ए सिस्टम ऑफ स्मॉल एन पार्टिकल्स। हमने उसके बाद में मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात की और डिफरेंट एग्जांपल्स की भी बात की। उम्मीद है आपको आज का डिस्कशन भी पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके बताइएगा, कोई कहीं दिक्कत है तो, और अपने नोट्स बनाइए, वीडियो को बार बार देखिए। थैंक यू वेरी मच।